اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتائیں گے جس کی برکت سے شوہر اور بیوی کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی وجوہات بھی حاصل ہوں گی جن کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو تعلقات خراب ہونے کی وجہ کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بعد تعلقات کی خرابی کی وجہ کو دور کرنے کی جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات میاں بیوی آپس کی رنجشیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ان کے تعلقات میں مزید خرابی آ جاتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میاں بیوی کے باہمی اختلافات کی وجہ اور اس کا روحانی علاج حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ شادی سے پہلے ہر لڑکی اور لڑکا کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ اس بات کو شادی کے بعد نظر انداز کرنا ضروری ہے۔ اب شادی کے بعد جب کوئی شوہر غیر عورت سے محبت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین دعا سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ لہٰذا شوہر سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 101 مرتبہ اسم اعظم یا سلاموں کا ورد کریں اور اس عمل کو آپ 7 دن تک لگاتار جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کے شوہر کے دل میں صرف اس کی بیوی کی محبت ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات بعض خوبصورت عورتیں کسی شوہر کو کالا جادو کے ذریعے اپنی محبت میں پھانس لیتی ہیں۔ لہٰذا جب کسی شوہر پر کالا جادو اثر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے شوہر کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ شوہر کی نفرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد بیوی بھی اپنی نفرت کا اظہار کسی نہ کسی انداز سے کر دیتی ہے اور اس وجہ سے میاں بیوی کے رشتہ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے شوہر پر کالا جادو اثر کر چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ تھوڑی سی چینی حاصل کر کے اس پر جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور یہ چینی چائے یا شربت میں ملا کر شوہر کو پلا دیں۔ یہ ایک دن کا عمل کرنے سے شوہر کے دل اور دماغ سے کالا جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر جمعہ کو دہرا سکتی ہیں اور اس وظیفہ کی برکت سے وہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط ہے تو اس کی وجہ سے زندگی میں محبت، خوشحالی اور خیر و برکت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ لیکن میاں بیوی کا مضبوط رشتہ اکثر نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان معمولی باتوں کی وجہ سے شدید اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے اختلافات کی وجہ سے ان کے درمیان بعض اوقات طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے درمیان اختلاف کی اصل وجہ نظر بد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر شوہر اور بیوی کو نظر بد کے اثرات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے اور یہ رشتہ نظر بد سے بھی ہمیشہ محفوظ رہے تو اس مقصد کے لیے آپ کسی بھی جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مٹھائی پر 1000 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور 3
313 मरतबा इसमें आज़म या मुमिन पढ़कर दम करें और ये मिठाई आप अपने शोहर को खिला दें। ये रूहानी अमल आप हर माह एक बार किसी भी जुमेरात को कर लिया करें। इंशाअल्लाह शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत और कायम रहेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ बीवी की मोहब्बत में इजाफा भी होता रहेगा। शोहर और बीवी के ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए और जिंदगी में खैर व बरकत लाने के लिए सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम और इसमें आज़म या मुमिन बेहतरीन वजीफ़ा है। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम के चंद रूहानी अमाल हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। इस आयत मुबारका सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम और इसमें आज़म या मुमिन को जैसे भी पढ़ा जाए इसकी बरकत से मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून और खैर व बरकत पैदा होती है और उनके दरमियान मोहब्बत का मजबूत रिश्ता भी पैदा हो जाता है। अगर कोई खातून जुम्मा के दिन 1000 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर 1 गिलास पानी पर दम करे और उस पानी के गिलास से आधा पानी अपने शोहर को पिला दे और आधा पानी खुद पी ले, ये अमल करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम और इसमें आज़म या मुमिन का वजीफ़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम और इसमें आज़म या मुमिन का वजीफ़ा बताएंगे जो आपकी हर परेशानी को दूर करने का खास और मुजर्रब अमल है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम एक कुरानी आयत है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में पाई जाती है। इस आयत मुबारका और इसमें आज़म या मुमिन को हर किस्म की मुश्किल से निजात और हाजत की तकमील के लिए ज़माना कदीम से विर्द किया जाता है और बहुत से अफराद ने इस आयत मुबारका की बरकत से अपनी ज़िंदगी में नामुमकिन कामों में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम और इसमें आज़म या मुमिन का ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसे करने से आप अपनी तमाम मुश्किलात पर बासानी काबू पा सकेंगे, आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी और आपको अपने हर जायज़ मकसद में कामयाबी हासिल होगी। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम के वजीफ़ा के बारे में बताने से पहले आपको फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम के वजीफ़ा के वो फ़वाइद बता दें जिनका बेशुमार लोगों ने मुशाहिदा किया। बयान की गई दुआए मुबारका और इसमें आज़म में तस्खीर खालिक की बेपनाह तासीर पाई जाती है। यानी अगर कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करता तो वो भी आपको देखे बगैर नहीं रह सकेगा। वो तमाम लोग जो आपसे नफरत करते हैं उनकी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी और हर खास व आम शख्स आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। घर, दफ्तर और जिंदगी के हर मैदान में आपको सर आंखों पर रखा जाएगा। जो बेटियां पसंद की शादी करना चाहती हैं उनके लिए गैब से सबब पैदा हो जाएगा और जो बहनें अपने शोहर की नफरत, गुस्से और बेरुखी का शिकार हैं तो फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम और इसमें आज़म या मुमिन की बरकत से शोहर अपनी बीवी का ऐसा दीवाना हो जाएगा कि वो अपनी बीवी के बगैर ना रह सकेगा। इस दुआ मुबारक की बरकत से शादीशुदा ख़वातीन को उनके ससुराल में अच्छा और इज्जत वाला मुकाम हासिल हो जाएगा और ससुराल वाले उसकी हर बात मानने लग जाएंगे। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम और इसमें आज़म या मुमिन के वजीफ़ा की बरकत से आपको हर किस्म की लड़ाई झगड़ों से निजात मिल जाएगी। आप दुश्मन की चालों और वार से महफूज रहेंगे। आपके रिज़्क में बेशुमार बरकत होगी। घर में पुरअमन माहौल रहेगा। आप जिस भी काम को शुरू करेंगे उसमें अल्लाह
अल्लाह की मदद से कामयाबी मिलेगी। आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी। इस वजीफा की बरकत से आपके लिए खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, बेरोजगारी का खात्मा होगा और अच्छी तनख्वाह वाला रोजगार मुयस्सर आएगा। आप तमाम दुनियावी मुश्किलात से महफूज रहेंगे। आपकी हर दुनियावी ख्वाहिश पूरी होने के लिए अल्लाह ताला की जात गैब से असबाब पैदा फरमाएंगे। किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए इस वजीफा की बरकत से आपको फतह हासिल होगी। ये वजीफा आपके रूहानी और दुनियावी मसाइल के लिए काफी है। ये वजीफा आप जिस भी मुश्किल या परेशानी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, आपको उस वजीफा में यकीनी कामयाबी हासिल होगी। अगर कोई भाई या बहन किसी मुसीबत या परेशानी में मुब्तला है, किसी मसले का हल चाहते हैं या किसी ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं, तो आप किसी भी जुमेरात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद आले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। नवाफिल की अदायगी के बाद आप 313 मरतबा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और 1100 मरतबा इसमें आजम या मुमिन का विर्द करें और ये अमल आपने एक ही दिन करना है। उसके बाद आप रोजाना 41 मरतबा फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और 100 मरतबा इसमें आजम या मुमिन और 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डाल लें। इंशाअल्लाह इस वजीफा को आप जिस भी हाजत, मुश्किल, परेशानी या मकसद के पेश नजर करेंगे, आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा तमाम जिंदगी इस दुआ मुबारक की बरकत हासिल होती रहेगी, यानी कि जिंदगी भर जब भी आपकी कोई हाजत होगी, आपको आपकी हाजत गैब से मिलती रहेगी। इसके अलावा आपको आपकी सोच से भी ज्यादा रिज़्क और दौलत हासिल होती रहेगी। अगर कोई भाई या बहन बयान किया गया वजीफा ना कर सके तो वो फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम और इसमें आजम या मुमिन के नक्श को हमसे बजरिए डाक या TCS मंगवा कर अपने पास और अपने घर में जरूर रख लें। इंशाअल्लाह आपको जो बरकत वजीफा की हासिल होगी, वही बरकत आपको इस कुरानी नक्श की भी हासिल होगी।